हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग मज़े में हो। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है एंड दिस इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक ऑब्जर्वर है O1 विच इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, यानी कि इनर्शियल फ्रेम में है, एंड ही और सी फाइंड्स दैट मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 2 kg changes with time as this. So ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ही इज ऑब्जर्विंग अ प्रोजेक्टाइल, और उसको ये प्रोजेक्टाइल का मतलब एनीथिंग दैट इज इन द एयर। डन है। सो ही और सी फाइंड्स दैट momentum of that projectile is equal to how much, 4t I cap plus 20t k cap, एंड प्रोजेक्टाइल का मास क्या है, 2 kg। सो अगर मुझे इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी की बात करनी है तो मैं क्या करूंगी, वेलोसिटी कैसे निकालूंगी, मोमेंटम बाय मास करके निकाल लूंगी, राइट। सो हियर आई विल से दैट दैट इज इक्वल टू हाउ मच, मास इज हाउ मच, 2 kg। सो इस पूरे टर्म को आप 2 kg से डिवाइड कर दो, जो इक्वेशन 1 है। सो व्हेन यू विल डिवाइड इट यू विल गेट 2t I कैप प्लस 10t k कैप। ठीक है, एंड फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट एक्सेलरेशन, सिंस क्वेश्चन में चलो आगे पढ़ते हैं पहले। फिर क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल जब हवा में है तो डेफिनेटली ग्रेविटी विल एक्ट ऑन इट, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 k cap, k cap meaning it's simply indicating the direction, and there is wind blowing in horizontal direction। और जब वो प्रोजेक्टाइल हवा में ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, तो हवा का भी फोर्स लग रहा है। सो विंड is flowing in the horizontal direction, let's say wind के flow का ये direction है, so that wind will apply certain force on this projectile। So this is a quite unique sort of projectile where not only force is acting in the vertical direction but also in the horizontal direction, so its horizontal velocity and vertical velocity both will change with time because force is acting in both directions। ठीक है, so ये हमारे दिमाग में रखना है। Another observer O2, now this is from observer 1, all these observations, observer 1 के according momentum is this, velocity we calculated to be this। Now let's talk about another observer who is sitting inside a car, and he or she observes that momentum of same projectile, yani ki O1 was observing that particular projectile, O2 is also observing the same projectile, एंड O2 का ऑब्जर्वेशन क्या होता है, O2 विच इज इनसाइड अ कार, नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि कार यहाँ पे एक्सेलरेट भी कर रहा है, कार की कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, एंड ही और सी ऑब्जर्व्स दैट प्रोजेक्टाइल का मोमेंटम क्या इसने ऑब्जर्व किया सेकेंड फ्रेम से, क्या है, दैट इज 8t I कैप माइनस 16t² j कैप plus 20t k का। So this velocity, the equation 2 की अगर मैं बात करूं, so this was the velocity of projectile with respect to ground, because this was momentum of projectile observed from the frame of ground, and that is why this is velocity of projectile with respect to ground, क्योंकि O1 जो observer है, that observer is on the ground। Now if you talk about this momentum is with respect to the car। So अगर इस momentum से आप velocity निकालना चाहते हो, then that velocity is basically velocity of projectile with respect to car। और वो कितना आ रहा है, देखो इसको 2 से डिवाइड कर दो, बिकॉज मोमेंटम से, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। So if you have to calculate velocity from momentum divided by mass, that is 2 kg here, so that will become 4t I cap minus 8t² j cap plus sorry 10t k cap। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार एट t इक्वल टू 1/8 सेकेंड। सो देखो हमारे पास वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑफ प्रोजेक्टाइल, कितना है बताओ, 2t I कैप प्लस 10t, 2t I कैप प्लस 10t k cap। So we can calculate acceleration of projectile with respect to ground, कितना होगा। So for that you will differentiate this velocity with respect to time, and if you are going to do that you will be getting d 2t by dt I cap के direction में plus j cap d 10t by, sorry not j cap, it is k cap, right, sorry, so it has to be k cap। सो के कैप डायरेक्शन में क्या है, दिस बाई डी टी। अगर आप इसका आंसर लिखते हो तो कितना आने वाला है बताओ, दिस विल बी 2,
This is going to be 2I cap plus 10k cap. So basically this acceleration is a constant acceleration. This is not changing with time. This is 2I cap plus 10k cap. So this is acceleration of projectile with respect to ground. Now let's calculate acceleration of projectile with respect to car. क्योंकि हमें कार की एक्सेलरेशन निकालनी है, दैट वी कैन ओनली डू बाय राइटिंग एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू बोथ ग्राउंड एंड कार. हाउ? दैट आई विल लेट यू नो. पहले हम लिख लेते हैं. सो यहां से अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू कार निकालते हो तो क्या करोगे? आई क्या d4t/dt माइनस जे क्या d8t² प्लस के क्या d10t/dt. ठीक है. और इसका वैल्यू क्या आने वाला है? देखो 4t का डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट 4. सो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू कार इज हाउ मच? 4 आई कैप, है ना? 4 आई कैप माइनस 16t जे कैप, वही है ना? 16t जे कैप प्लस 10 के कैप. Done. Now, if you have to calculate acceleration of, APG को आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो ना, acceleration of P minus, sorry, acceleration of projectile minus acceleration of ground. और APC को क्या लिख सकते हो आप? acceleration of projectile minus acceleration of car. और देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, सॉरी ऐड करने से नहीं मिलेगा हमें, अगर इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, देन यू विल बी गेटिंग एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो एक काम करो, आप करो एपीसी माइनस एपीजी. तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा एपी माइनस एसी, ठीक है, माइनस ऑफ, ठीक है, यहां से आप निकालो माइनस ऑफ ए पी माइनस ए जी. अगर आप इसको सही से सॉल्व करते हो तो क्या मिलने वाला है हमें? एपी माइनस एपी कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग माइनस ए सी माइनस प्लस ए जी. सो वी आर गेटिंग ए जी माइनस ए सी, बट एक्चुअली हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ कार. इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ए सी जी. सो हमें निकालना है ए सी माइनस ए जी. ठीक है. सो ये ऑपोजिट आ रहा है. एक काम करो, इसको ऐसे अब लिख लो. ये तो हमारा ऐसा आया ना, इसको अगर मैं लिखूं एपीजी माइनस एपीसी, यानी कि एलएचएस एंड आरएचएस दोनों को ऑपोजिट कर रही हूं, देन यू विल गेट एसी माइनस एजी. ठीक है. सो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को माइनस करो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू कार से. अगर इन दोनों को माइनस करते हो तो क्या मिलेगा बताओ? 2i माइनस 4i कैप कितना आने वाला है? सो एपीजी माइनस ए पी सी. अगर आप करते हो क्या मिलेगा? माइनस 2i कैप. ठीक है. और 10 के कैप से 10 के कैप माइनस हो जाएगा, दैट इज 0. सो इन के कैप डायरेक्शन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एक्सेलरेशन ऑफ कार. डेफिनेट सी बात है, इफ कार इज ट्रैवलिंग ऑन अ रोड इट विल हैव एक्सेलरेशन ओनली इन 2 डायमेंशन, राइट? बिकॉज कार डजंट मूव इन 3 डायमेंशन, क्योंकि वो सिर्फ सुनील शेट्टी और सॉरी कौन है, रोहित शेट्टी वाली कार उड़ती है 3D में, राइट? नॉर्मल कार क्या है? इट विल it will have motion along x and y axis. ठीक है. अब इसको आप माइनस करो. हियर 0 जे कैप है, 0 जे कैप से 16t जे कैप को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? प्लस 16t जे कैप. सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया हमारा? माइनस 2i कैप प्लस 16t जे कैप. कितने टाइम पे निकालना था? देखो एक्सेलरेशन 1/8 सेकेंड पे, तो आप यहाँ पे टाइम का वैल्यू 1/8 सेकेंड रख दो, प्लस 16 इंटू 1/8 जे कैप. सो हाउ मच वी आर गेटिंग? माइनस 2i कैप प्लस 2 जे कैप. डन है. सो कार देखो कैसे मूव कर रहा है. अगर आप इसको अप्रिशिएट करना चाहते हो वेक्टोरियली, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. In this direction it has acceleration of 2 meter per second square, and in this direction it has acceleration of how much? 2 meter per second square. So basically car
car's acceleration is in this direction, making an angle of 45 degree with the y-axis, making an angle of 45 degree with the x-axis. Why 45? Because these two are equal vectors. कार हैज एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। डन है। अगर तुम्हें इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करोगे, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो दैट विल गिव यू हाउ मच, √8। सो दैट विल गिव यू हाउ मच, 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। यहाँ पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट था, आपको बहुत ही केयरफुली सिर्फ आगे की तरफ बढ़ते जाना है बाय यूजिंग relative concept. I hope you have understood it. Even if not, you feel like if you are stuck somewhere, you can let me know in the comment section. Thank you. Keep on solving more number of questions.